everybody. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. To look beautiful and smart at all times is quest of humans right from the beginning of civilization. Few of the very common conditions affecting our look and feel of a person is acne, hyper or hypopigmentation, and even hair loss. And out of these, acne is a big concern. Acne is a very common skin condition that can impact anyone. Whether you are a teenager or an adult, the skin complaint is no stranger. So, knowing the various types of acne can actually help you to treat the condition better. Acne vulgaris is a chronic condition affecting more than 85% of adolescents and young adults. And it is one of the most common diseases affecting humanity and the quality of life. It goes beyond just being a skin ailment to various psychological disorders such as depression, anxiety, stress, and low self confidence. Hence, it is very important to know about the holistic treatment approach for this ailment. So let's connect today with our skin expert, Dr. Radhika Patidar, live from Indore to talk on role of sunscreen and acne management. Dr. Radhika Patidar is a renowned and experienced dermatologist. She brings with her a very good experience and has been associated with some of the best hospitals. A dedicated, compassionate doctor who handles many challenging cases with the latest cutting edge technology. Her expertise lies in acne treatment, skin rejuvenation, hair treatment, LHR, and many such. She offers patient friendly scientific advice to your problems while managing the highest professional and ethical values. And she has done her MBBS from MGM Medical College Indore and post graduation in MD in dermatology from SAMC and PGI Indore. And currently, she is practicing at Cutis Surgery Skin Clinic in Indore. It's such a pleasure, Dr. Radhika Patidar, to have you with us. A very warm welcome to you. Thank you. So, Doctor, today we are going to talk about acne management and the role and significance of sunscreen and acne management. First of all, we would like to know little more about acne. Acne एक ऐसी चीज है जैसे बहुत आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि पिंपल हो गए हैं चेहरे पे. And this is such a common ailment. Almost everybody goes through that phase, right? तो क्या है acne और किस तरह से ये हमें affect करता है, डॉक्टर? Acne is basically the inflammation of pilosebaceous gland. Pilosebaceous glands वो होते हैं जहाँ पे हमारी oil glands होती हैं और hair की opening होती है. जो hair का opening होता है जो हमारे face पे होता है बहुत ही fine hairs रहते हैं. They are associated with these sebaceous glands which produce sebum और oil in general जो हम बोलते हैं. तो जो oil और hair का opening that is the common one. So there is an inflammation of this gland which result in the acne. तो इनिशियली क्या होता है ना कि जब भी हेयर फॉलिकल या पोर का जब वो ओपनिंग जो है वो क्लॉग हो जाती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो ये सिक्रीशन अंदर ही रिटेन रह जाते हैं और उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्ने ब्रेकआउट्स होने लगते हैं. ओके, तो ये तो बात हुई डॉक्टर कि किस तरह से एक्ने होते हैं. वी वुड आल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल कॉजेस फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर एक्ने. मतलब हम लोग कहते हैं कि टीनेज में एक्ने होता है या कई बार एडल्ट्स में एक्ने होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आर द कॉजेस? सो कॉज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ज्यादा केसेस देखते हैं वो टीनेज ग्रुप में होते हैं. जैसे ही प्यूबर्टी आता है उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड्रोजन एक्सेस होता है इन द मेल और फीमेल्स में भी एंड्रोजन लेवल चेंजेस होते हैं. तो उस टाइम पे प्यूबर्टी में केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो हार्मोन का तो डायरेक्टली कनेक्शन है ही. सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है देन आल्सो द एक्ने इंक्रीजेस. थर्डली इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी is also one of the state जहाँ पे hormonal imbalance बहुत ज्यादा होता है. That time also the acne का exacerbation होता है. Secondly, hormonal imbalance की बात करें तो PCOS is one of the reason for the acne. Right. Bad lifestyle and hormonal imbalance leads to the PCOS. इसमें just सिर्फ acne नहीं होता है, acne के साथ में hair fall, hirsutism, menstrual irregularities, all those leads to the एक्ने. सेकेंडली थायराइड डिसऑर्डर्स भी होते हैं. हाइपोथायराइडिज्म में भी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एक्ने होता है. तो ये तो होगी हार्मोनल इंबैलेंस की बात. इसके अलावा जो होता है उसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है. अगर एक फैमिली मेंबर को एक्ने है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू द जेनेटिक्स. थर्डली आपका बैड स्किन केयर रूटीन.
कॉस्मेटिक्स जो आप यूज कर रहे हो, इफ यू हैव द एक्ने प्रोन स्किन एंड यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट व्हिच आर ऑयल बेस्ड, so the your pores will get clogged and that may result into the breakouts. And few medications are also there which as a side effect causes the acne, like steroids or phenytoin, lithium. These are the drugs which causes the acne. राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो एक्ने हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है इन केस देयर इज सम फैमिली हिस्ट्री, देन वी आर एट रिस्क डेफिनेटली। देन स्किन केयर को लेकर भी एक बहुत जरूरी बात आपने की कि कई बार जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो हमारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल नहीं होते और दे आर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, जिसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं। डॉक्टर, कई बार ये कहा जाता है और माना जाता है कि हमारी स्किन गंदी है, डर्टी है, इसलिए एक्ने बार-बार हो रहे हैं। तो नॉर्मली एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस फॉर दोज हु हैव ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन, वो लोग ये करते हैं कि वो बार-बार अपना चेहरा धोते हैं, बहुत बार अपना चेहरा धोते हैं और बहुत बार क्लेंजर या फेस वॉश के साथ अपना चेहरा धोते हैं। उनको लगता है हम जितनी बार चेहरा धोएंगे एक तो हमारा चेहरा साफ रहेगा एंड दूसरा कि उसमें ऑयल सिक्रीशन होगा ही नहीं, तो विल हैव एक्ने फ्री स्किन। इज इट अ मिथ या इसके पीछे की क्या सच्चाई है? यस, इट्स अ मिथ। एक्चुअली होता क्या है कि ज्यादातर एक्ने जो है, एक्ने प्रोन स्किन जो रहती है दैट इज द ऑयली स्किन। ऑल्दो ड्राई स्किन में भी एक्ने होता है, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑल कैन हैव एक्ने। बट लोगों का मिथ रहता है कि अगर एक्ने हो रहा है तो ऑयली स्किन है तो हम बार बार फेस वॉश करेंगे तो वो सारा ऑयल निकल जाएगा और एक्ने ब्रेकआउट नहीं होंगे। इससे होता क्या है ना कि आप बार बार फेस वॉश करते हैं, आप स्किन को इरिटेट करते हैं, स्किन का नॉर्मल मॉइस्चर भी लॉस होता है और हमारी स्किन को क्या रियलाइज होता है कि हमारी स्किन अब ड्राई हो गई है क्योंकि जो नॉर्मल मॉइस्चर है वो हट गया है, तो दे टेंड टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। तो ऑयल ग्लैंड ज्यादा ऑयल बनाती है एंड यू एंड अप इनटू हैविंग द मोर ब्रेकआउट्स। सो इट इज रिकमेंडेड, लाइक अगर आपका ऑयली स्किन है, ज्यादा ऑयली है, वेदर भी ह्यूमिड है, लाइक अभी का जो सीजन है, तो यू कैन वॉश योर फेस थ्राइस। नॉर्मली ट्वाइस अ डे फेस वॉश इज सफिशियंट। और जब भी फेस वॉश करते हैं यू हैव टू वॉश योर फेस जेंटली, क्योंकि अगर आप विगरस रबिंग करेंगे, एक्सेस रबिंग करेंगे, स्क्रब करेंगे इसलिए कि सारा ऑयल हट जाए, फेस क्लीन हो जाए, तो इससे आप फेस को इरिटेट करते हैं, तो इरिटेशन से एक्ने और वर्सन होते हैं। तो आपको फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग द फेस इज नेसेसरी। आपको डर्ट, ऑयल, सीबम जो सिक्रीशन आए हैं, जो आपने प्रोडक्ट लगाए हैं, जो मेकअप आप कर रहे हैं, वो सब रिमूव करना जरूरी होता है क्योंकि वही आपका जो पोर्स है उनको क्लॉग करेगा। बट एक्सेस फेस वॉश इज नॉट रिकमेंडेड। राइट। एक्सफोलिएशन का भी आपने बताया, बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्क्रब करते हैं, उनको लगता है हम जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे उतनी हमारी स्किन जो है डर्ट फ्री रहेगी या उसमें एक्ने नहीं बनेगा, बट दैट विल एंड अप इरिटेटिंग आवर स्किन, राइट? इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली हमें स्क्रबिंग भी नहीं करनी है। ना डॉक्टर, चूंकि हम एक्ने को लेकर बात कर रहे हैं, हम कई बार देखते हैं कि कई बार हमारे फोरहेड पे एक्ने हो रहे हैं या कई बार बटरफ्लाई एरिया चीक्स पे, नोज पे, या नोज में हमें कई बार व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स दिखते हैं, कई बार जॉ लाइन पे भी हमें एक्ने दिखते हैं। तो ये जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग एरिया है जहाँ पे एक्ने आते हैं, ये भी क्या कुछ बताते हैं? यस, स्टार्टिंग विद द फोरहेड। फोरहेड वाला पार्ट वो होता है जो हमारे हेयर्स के ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है। इफ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव द ऑयली स्कैल्प ऑल्सो। तो ऑयली स्कैल्प जहां पर होता है वहां पे मैलिसीजिया विच इज अ फंगस ईस्ट, सो उसका प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है एंड दैट लीड टू द डैंड्रफ। So whatever the dandruff, whatever the oil secretion are there, they come to the forehead and that causes the acne over the forehead. तो ये बहुत commonly associated होता है कि अगर ज्यादा dandruff हो रहा है तो you will end up in having acne over the forehead. For this you need to wash your hair regularly. आप वीक में एटलीस्ट 3 days हेयर वॉश करें जिससे कि आप इस ब्रेकआउट से बच सकते हैं और डैंड्रफ से बच सकते हैं। अगर ज्यादा सीवियर है, follow the anti-dandruff shampoos and some lotions are there to get rid of that. So वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप ये भी ध्यान रखें कि आपके हेयर्स बार बार फेस पे ना आए जिससे कि वो ऑयल और वो सिक्रीशंस और वो डैंड्रफ आपकी स्किन के कांटेक्ट में ना आए और वो पोर्स को क्लॉग ना करे। सेकेंडली, जो आपने टी जोन की बात करी थी, बटरफ्लाई एरिया में जो नोज के आसपास होता है, कॉम्बिनेशन स्किन में बहुत कॉमनली होता है द टी जोन इज ऑयली एंड रेस्ट ऑफ द फेस इज ड्राई।
सो यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी, द ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा होती है, और इनकी एक्टिविटी ज्यादा होने से मोर ऑफ द सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, तो एक्ने ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं इस एरिया में। थर्डली, द जॉ लाइन में जो एरिया होता है, जॉ लाइन हमारा जो एरिया होता है, दे आर मोर सेंसिटिव टू द एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ हार्मोन जो कि पीसीओएस वाले पेशेंट में ब्रेकआउट्स के लिए बहुत कॉमन होता है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द जॉ लाइन। तो ये एक कॉमन इंडिकेशन रहते हैं, एंड वी आस्क हिस्ट्री पेशेंट से अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, कि अगर वो जॉ एरिया में लेके आ रहा है, वी ऑलवेज आस्क अबाउट द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस और hair fall or any other changes related to the hormonal imbalance. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें एक्ने हो रहा है तो हम एक डॉक्टर के पास जाए, सही सलाह ले, rather than going for home remedies or over the counter medication or asking a family or friend or influencers इतने सारे हैं, तो इनसे ना इन्फ्लुएंस होके हमें एक डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और वो इसलिए भी क्योंकि वो कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है we are having hormonal imbalance और उसकी वजह से एक्ने हो रहा है। So it's important to understand कि क्यों हो रहा है। Diagnosis is important और वो सिर्फ एक qualified dermatologist ही कर सकते हैं। So please, in case you have acne, go to a right person, go to an expert, which is a qualified dermatologist. Now, when we say doctor ki it's important to go and contact a doctor, we also know at the same time that in our society, many people will go for over-the-counter medication. They'll go to a chemist and say, भैया acne हो रहा है, कोई cream दे दो। और हम वो topical cream लगाते रहते हैं। डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमारी कंडीशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या हमें लगता है कि जो पहले अच्छा हो रहा था एकदम से, अब वो बहुत विगरस हो गया है और अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इनिशियली हम कोई होम रेमेडी करेंगे, दोस्त से पूछ लिया, कई बार तो हम अपने दोस्त या रिश्तेदार के प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करने लग जाते हैं जो उनको दिया गया होता है, और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसा मैं कह रही हूँ, टॉपिकल एप्लीकेशन। और इनिशियली वो क्रीम्स बहुत अमेजिंगली वर्क भी करती है, एंड दैट्स हाउ वी फॉल प्रे टू इट। हमें लगता है अरे वाह, ये तो हमें बहुत वंडर क्रीम मिल गया है, बट देन वी स्टार्ट गेटिंग द एडिक्शन, और जब जब हम उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। We would like you to shed some more light over these over-the-counter medications and how harmful they can be for our skin. See, first thing is कि every person has different skin type. उनका skin अलग होता है. Age wise, we give the different medication. Some medications are given in the daytime, some are in the night time. कुछ ऐसी medication रहते हैं जिसके साथ में sunscreen बहुत important होता है, moisturizer बहुत important होता है, otherwise they will irritate your skin. So all these things to understand, you need to go to a dermatologist. आप chemist के पास जाते हैं, बहुत commonly होता है कि they give a cream with the steroid. स्टीरॉइड वो चीज होती है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इरिटेशन को कम करेगा. पेशेंट विल फील लाइक कि दिस एक्ने आर इंप्रूविंग, सो दी कीप ऑन अप्लाइंग दैट. जो आप बता रहे हो कि वो लगाते रहते इनिशियली बहुत अच्छा रहता है. सो नॉट ओनली इन द केस ऑफ एक्ने, इन द केस ऑफ मेलाज्मा ऑल्सो, द पिगमेंटेशन ओवर द फेस, दे गिव द क्रीम विथ स्टीरॉइड. वो पिगमेंटेशन को भी कम करता है, वो इनिशियली एक्ने को भी कम करेगा. पेशेंट जब उसको छोड़ता है कि हाँ अब नहीं लगा रहा है, अब ठीक हो गया है, then it comes with more बहुत ही खराब होके आता है. तो मेलाज्मा भी वर्सन होता है, एक्ने भी वर्सन होते हैं. और स्टीरॉइड के साथ में एक चीज होती है कि इट मेक्स द स्किन सेंसिटिव, इट मेक्स द स्किन थिन. जो आपकी नीचे की ब्लड वेसल है वो दिखने लगती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, धूप सहन नहीं होती है, रेडनेस होती है. ऑल दिस कम्स टू दी प्ले जब वो आता है इस तरह से. फिर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में, एंड नाउ दे वांट द क्विक रिलीफ. भले उन्होंने 2 साल 3 साल तक अपना कुछ भी होम रेमेडी सब कुछ ट्राई किया हो, जब डॉक्टर के पास आया कि आज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो क्विक रिजल्ट चाहिए. अब मुझे 10 दिन हो गए हैं, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे 15 दिन हो गए हैं क्रीम स्टार्ट करे, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है. सो एक्ने इज नॉट द थिंग विच कैन बी क्योर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड. एंड फॉर द इनिशियल कंट्रोल यू मे टेक 4 to 6 to 8 weeks to see the result. जब आपका कंट्रोल शुरू होगा, देन ऑल्सो द एक्ने कैन कम, बट सिवियरिटी कम होती जाएगी. लाइक प्रीवियसली आपको हर 3-4 दिन में 3-4 पिंपल आते थे, अब वो 3-4 दिन में 3 या 2 पे आ जाएंगे, देन 1 पे आएंगे. तो इस तरह से धीरे धीरे कम होता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू काउंसल द पेशेंट कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है. सेकेंडली कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, उस बीच में वी कांट चेंज द मेडिकेशन, बिकॉज कि हम एक मेडिकेशन का इफेक्ट अगर नहीं देख पा रहे हैं कि वो आया है नहीं आया है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, वी नीड एटलीस्ट 4 to 6 वीक फॉर दैट. तो वी कांट चेंज दिस मेडिकेशन फ्रिक्वेंटली. पेशेंट 10 दिन में आ जाते हैं कि मैंने ये स्टार्ट करा और मुझे तो एक्ने आ रहे हैं,
पिंपल और बढ़ गए हैं। तो ये जो प्रोसेस रहता है दैट टेक्स टाइम टू कंट्रोल। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन फ्यू आर गुड, लाइक अगर आप कुछ एंटीबायोटिक लगा रहे हो, क्लिंडामाइसिन लगा रहे हो, दैट इज ओके, यू कैन अप्लाई, बट दिस इज नॉट जस्ट अ क्लिंडामाइसिन व्हिच कैन गेट यू द रीड ऑफ द एक्ने। कोई एक सिंगल क्रीम नहीं है, यू नीड मॉइस्चराइजर ऑल्सो, यू नीड राइट सनस्क्रीन ऑल्सो, क्लिंजर ऑल्सो, ऑल दैट थिंग्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। ऑल्सो योर लाइफस्टाइल, दूसरी चीजें जैसे आपकी फूड हैबिट होती है, आपकी लाइफस्टाइल होती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, व्हाटएवर, दैट आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द एक्ने स्किन। बिल्कुल। वी ऑलवेज से डॉक्टर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? See, if you have the history of acne in your family, or you are having like एक दो breakouts हो जाते हैं, then you have a acne prone skin जो कि और वर्सन हो सकते हैं। The moment you see कि आपको acne हुआ है, you need to consult the dermatologist, तो जो आपको राइट गाइडेंस देंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, यू नीड टू एड्रेस दैट। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, व्हाट स्किन केयर रूटीन यू शुड फॉलो, लाइक कि हमने क्लिंजर की बात करी थी कि कितने टाइम फेस वॉश करना है, हमको एक्सेस भी नहीं करना है। अगर कुछ होम केयर आप यूज कर रहे हो, कुछ हर्बल मेडिकेशन यूज कर रहे हो, तो व्हाट इज एप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट। सो ऑल दिस थिंग्स जो हैं वो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं, जो आपके और फर्सनिंग होने से बच सकते हैं इससे, एक्ने को। सेकेंडली आपकी फूड हैबिट, आपका अगर वेट ज्यादा है तो वेट लॉस, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो सब चीजें एड्रेस हो सकती है और आप इनको ज्यादा वर्सन होने से बचा सकते हो। जी। एक डेली स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए डॉक्टर? आपने बताया कि एक दिन में 2, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 बार हमको फेस क्लेंजिंग करना है। इसके अलावा एक बेसिक स्किन रूटीन जो हम सब फॉलो कर सकें और जिससे हमारी स्किन एक्ने फ्री भी रह सके। द बेसिक स्किन केयर रूटीन के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए क्लेंजर और फेस वॉश, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर योर हेल्दी स्किन। आपका अगर एज हो रहा है 30 प्लस एज में, यू मे नीड एन एंटी एजिंग क्रीम। अगर एक्ने प्रोन स्किन है, सो यू नीड समथिंग लाइक कि जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। अगर आपका ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन को का ऑयल को कंट्रोल करे, जिससे कि एक्ने ब्रेकआउट ना हो। तो फेस वॉश फॉर द ड्राई स्किन 1 टाइम अ डे, मैक्सिमम 2 टाइम्स अ डे। माइल्ड क्लिंजर शुड बी यूज, सोप फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री। सेंसिटिव स्किन है तो भी आपको सोप फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री क्लिंजर यूज करना है। अगर ऑयली स्किन है तो यू कैन यूज अ सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश। एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो यू कैन यूज लाइक इन बिटवीन द टू, की कुछ भी ऐसा रहे जो बहुत माइल्ड भी नहीं हो, मतलब एकदम डर्ट को क्लीन भी ना कर पाए और एकदम ड्राइंग भी ना हो। सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप वैसा यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर, आपका अगर ऑयली स्किन है, यू नीड अ लाइट मॉइस्चराइजर विच कैन बी अ जेल बेस और लोशन बेस, जो जाकर ज्यादा मैसी ना हो, आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, और मॉइस्चराइजेशन भी देखो, बिकॉज हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको एक्ने हो भी रहा है तो उसकी हीलिंग में भी, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी मॉइस्चराइजर का रोल होता ही है। सेकेंडली, आप जो भी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हो एक्ने को ठीक करने के लिए, एंटी एक्ने क्रीम, दैट माइट कॉज इरिटेशन टू योर स्किन, सो उसको भी काउंटरैक्ट एक मॉइस्चराइजर बैलेंस कर सकता है। थर्डली, अगर एक्ने होता है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो एक्ने की वजह से पिगमेंटेशन के भी चांसेस होते हैं। whenever the inflamed lesion, जो रेड पिंपल्स होते हैं या बसपेड होते हैं, दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, तो सनलाइट वहां पे कोई भी इन्फ्लेम लीजन के वहां पर मिलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो पिगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट कैन बी रिड्यूस विद द राइट सनस्क्रीन, एंड द सनस्क्रीन फॉर द एक्ने प्रोन स्किन शुड बी जेल बेस्ड। ऑल्सो द मैट फिनिश सनस्क्रीन शुड बी यूज्ड, जिससे कि पोर्स क्लॉग ना हो। And the next thing is कि there are many anti acne creams and gels that should be used according to the dermatologist, because few creams are there which is applied at the night time. Quantity is also important. The site is also important. Few creams should not be applied under eye क्योंकि वहाँ पे irritation होता है. So these all things your dermatologist will tell you कि आपका किस एक्ने की स्टेज पे क्या क्रीम रिक्वायर्ड है और कितने टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज one preparation cannot be used throughout the year. राइट। जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई डॉक्टर, कि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़ेशन और सनस्क्रीन एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट मॉइस्चराइज़ेशन, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो ऑयली स्किन है उसमें एक्ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या जो एक्ने प्रोन स्किन है, दे विल से दैट सी आई एम ऑलरेडी सिक्रीटिंग सो मच ऑफ ऑयल, व्हाई शुड आई यूज़ अ मॉइस्चराइज़र?
तो कई बार जिनकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है, वो मॉइस्चराइजर को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, उसको शामिल नहीं करते। What's your take on that? What would you like to say to those who are yet not using moisturizer as a regular thing? सी अगर ज्यादा ऑयली स्किन है, द वेदर इज लाइक ह्यूमिड है, आप दिन में जा रहे हो, आप अपना एक एंटी एक्ने क्रीम लगा रहे हो, देन यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन, उसके बीच मॉइस्चराइजर लगाना कैन बी मैसी, सो यू कैन Hmm. स्किप ऑन दैट टाइम. बट इन द नाइट टाइम व्हेन यू अप्लाई योर एंटी एक्ने क्रीम, ओवर दैट यू शुड अप्लाई द मॉइस्चराइजर, क्योंकि ओवर नाइट आप कुछ दूसरा अप्लाई नहीं करते हो, आपका फेस वॉश नहीं होता है, एंड यू नीड अ हाइड्रेशन ऑल्सो फॉर योर स्किन. So oil is different, hydration is different. So moisturizer will provide you the hydration. Secondly, आप cream based moisturizer ना use करें, क्योंकि cream based moisturizer always will make your face messy. So you can choose a light moisturizer जो कि gel based रहे या lotion based रहे, जो आपकी स्किन को messy भी ना करे, pores को clog भी ना करे और hydration भी provide करे. Because acne की healing के लिए या हमारी स्किन को healthy रखने के लिए moisturizer is must. So you can choose a non comedogenic moisturizer जो कि एक्ने ब्रेकआउट नहीं करेगा बट स्किन को हाइड्रेट करेगा. इन दैट वे यू कैन बिल्कुल। यूज, यू हैव टू यूज. और इसके लिए अगर आप सही मॉइस्चराइजर क्या हो सकता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ये जानना चाहते हैं, तो अगेन यू कैन गो एंड कंसल्ट योर डर्मैट. They'll help you because they will know your skin, your working conditions, etc. उस हिसाब से वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपको सजेस्ट कर सकते हैं. सनस्क्रीन को लेकर भी यही होता है डॉक्टर. आई डोंट लाइक द वाइट कास्ट, और इट मेक्स माय स्किन वेरी डल, और इट मेक्स मी स्वेट अ लॉट, or I already have acne, I would not like to layer it up with sunscreens. ऐसे बहुत सारे excuses हैं, complaints हैं जो हम normally रखते हैं sunscreens को लेकर. What's your take on that? See, you need to choose your sunscreen also according to your skin type. The oily skin needs a gel-based, lotion-based moisturizer, matte finish sunscreen, and dry skin needs a cream-based sunscreen. But sunscreen is must. You cannot avoid this because many of the anti-acne product make your skin sensitive to sun. So if you're applying glycolic acid or salicylic acid, retinoid, adapalene, you need a sunscreen to be applied regularly along with the other creams also. So Right. moisturizer, sunscreen you cannot skip from your skincare routine whether you have acne or not. Right. Sunscreen को लेकर बहुत सारी बातें हैं. When we go out to buy a sunscreen, there are so many informations on the box or on the tube of that sunscreen, starting from SPF to boot star rating to whether it's a broad spectrum or not. हम जब sunscreen लेने जाए, keeping in mind that we may have acne prone skin, and that's why we are trying to find the best solution. किन चीजों का, कौन सी वो बेसिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए while purchasing a sunscreen, doctor? Whenever you go to purchase a sunscreen, you should look for a few things. One is if you have acne prone skin, it should be non-comedogenic. The first, very most important thing. Secondly, it should be broad spectrum. It should cover UVA protection as well as UVB protection. So both the sunlight protections should be there. So that is called broad spectrum sunscreen. Secondly, we see a SPF marking on that. So SPF should be at least 30. If you are allergic to sun, if you have tendency to develop more pigmentation, then you can opt for SPF 50. Because SPF 30 offers protection from around 97% of the UV radiation. When it goes to SPF 50, it provides a protection from 98% of the UV radiation. So the protection increases when you higher the SPF. So SPF is important. Thirdly, PA rating. PA rating is the marker for UVA protection. It should be at least 3+ or more than that. And for acne prone skin, gel based or lotion based, matte finish, which I have already told you, that is there. Okay. And again, we hear so many things regarding the application, reapplication, the amount to be applied in case of sunscreen, because we are also, focusing on sunscreen and the role of sunscreen in managing acne. We would like you to throw some more light on that, doctor, कि कितना amount हमें apply करना है, कब apply करना है, reapplication क्यों important है, कब reapply करना है. See, when it comes to the sunscreen application, whether it is 30 SPF or 50 SPF, they provide the protection for 2 to 3 hours.
So the application amount, about the half a teaspoon or 3 ml of sunscreen is required to cover your face and neck. So 3 ml or half a teaspoon of sunscreen for face and neck, 1 teaspoon for your each upper limb, I mean to say the arms and forearms. And if you are going out with shorts and all, so for each leg, 1 teaspoon, and for the legs also 1 teaspoon for both the covering both the feet. So especially for the face, when you apply at the face, half a teaspoon is required for face and neck. You should also apply the sunscreen over your ears and back of the neck, because we forget that we apply over the face, neck, and we forget our ear. They are also exposed to sun, so they need to be protected. And the frequency of application, it should be reapplied every 2 to 3 hours, because the efficacy is for 2 to 3 hours only. So reapplication is also important. ओके कई बार होता है हमें लगता है कि अगर हमारा सन एक्सपोजर है या हम वी आर वर्किंग अंडर द सन और समथिंग देन वी नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन अदरवाइज इफ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम और इनसाइड ऑफिस व्हिच इज एयर कंडीशन एंड ऑल देन आई डोंट रिक्वायर सनस्क्रीन ये एक बहुत कॉमन नोशन है लोगों के बीच में उनको लगता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं सन का एक्सपोजर है तभी हमें सनस्क्रीन यूज करना है व्हाट्स योर से ऑन दिस डॉक्टर सी मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि जहां भी उजाला आ रहा है मतलब सनलाइट आ रही है. ऑब्वियसली आप डायरेक्ट सन में जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट इज मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट, जो हमारे घर में रिफ्लेक्ट होके आ रही है, बट स्टिल दे आर कमिंग, सो द हार्म इज ऑलवेज देयर. Secondly, when you are inside the home, when you are doing the homework or office work, then you are exposed to the lights from your gadgets, the blue lights and all. So आपके फोन से भी रेडिएशन आ रही है, आपके लैपटॉप से, आईपैड से, टीवी से, सब जगह से रेडिएशन आ रही है. So whether it is sunny or winter time or cloudy days, you are inside or outside, you have to apply the sunscreen to keep your skin protected. राइट तो अगर मैं अभी एक लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रही हूँ तो वो लैपटॉप से जो रेज एमिट हो रहे हैं वो भी मेरी स्किन को डैमेज कर रहे हैं लाइट्स तो होती ही हैं हम जब घरों में होते हैं तो एलईडीज होते हैं दूसरे तमाम तरह की लाइट्स होते हैं वो भी इक्वली डैमेजिंग है सो irrespective of the fact whether you're working inside or outside or you have sun exposure or no sun exposure you need to apply sunscreen religiously regularly that's really important कुछ सवाल भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेती यस One thing I also want to mention, the homemakers, when they cook food, that time also the lot of heat is generated from the gas and all. So that time also they need to apply the sunscreen. ओके तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है एंड यही वजह है शायद क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं उनको पिगमेंटेशन का बहुत या मलाजमा का बहुत इशू रहता है प्रोबेबली बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन व्हाइल दे आर कुकिंग एंड ऑल अज्यूमिंग कि हम तो घर के अंदर है हम तो घर का काम कर रहे हैं हम तो लैपटॉप पे भी काम नहीं कर रहे हैं बट इट्स इक्वली डैमेजिंग सो प्लीज एक रेगुलर अपने स्किन केयर रजाइम में जो है शामिल कर लीजिए सनस्क्रीन और उसे रेगुलरली रिलीजियसली लगाइए री एप्लीकेशन की बहुत जरूरी है कुछ सवाल हम अपने व्यूअर्स के ले लेते हैं डॉक्टर हमारे पास राहुल बत्सवार का एक सवाल है वो पूछ रहे हैं आई हैव एक्ने प्रोन स्किन डॉक्टर कैन यू एक्सप्लेन हाउ यूजिंग सनस्क्रीन इम्पैक्ट्स माय एक्ने एंड वेदर इट्स सेफ फॉर मी टू यूज Yes, it is safe. It is to be applied. It is must for you. Whenever you apply a anti-acne cream or something, how you can layer is you have to apply your anti-acne cream first after the cleansing, obviously. Cleanse your face, apply an anti-acne cream or serum, whatever you are using. After that, you can apply the moisturizer if you are comfortable with, and after that, sunscreen in the last. Because you need a protection from sun, so sunscreen should be the last layer in your skincare routine during the daytime. राइट सनस्क्रीन को लेकर एक और सवाल पूर्वी मेहरा का है could you provide some tips on integrating sunscreen into my skincare routine while still addressing my acne concerns effectively I think I have told it in the last answer only. yes. So along with anti-acne cream also you can apply the sunscreen. You have to layer that on the top of your anti-acne regime, whatever you are using or whatever you are advised to use. So
you need to apply the sunscreen regularly in the daytime, whether you are on the anti-acne medication or not. Okay, we have Faria with us. उनका सवाल है, is there a specific SPF level that's most effective for someone dealing with acne, or should I follow the general recommendations of SPF 30 or higher? The minimum SPF 30 you should apply. If you can if you want to apply 50 SPF, then you can go for that, but minimum 30 should be there. For acne prone skin. And if you have the tendency to develop the pigmentation or post-inflammatory hyperpigmentation when the acne heals, then you should opt for 50 SPF sunscreen. Right, क्योंकि हम देखते हैं डॉक्टर जिन्होंने भी एक्ने फेस किया है, they will understand कि एक्ने ट्रीट करना एक चीज होती है और एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स ट्रीट करना एक दूसरा ही प्रोसेस है, और वो कई बार ज्यादा मुश्किल लगता है. कई बार हमें लगता है कि एक्ने ट्रीटमेंट इजी है एक्ने स्कार्स और मार्क्स को ट्रीट करने से ज्यादा. तो क्या जो प्रोसीजर्स कई बार अपनाए जाते हैं टू ट्रीट द एक्ने स्कार्स और मार्क्स, उसके बाद भी क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो उसके बाद भी आप लोग रेकमेंड करते हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल डेफिनेटली हो? Yes, even before the procedure also, we do chemical peel for the acne and also for the pigmentation. And after the acne heals, we also go for the micro needling for the acne scars. So we always ask for the to the patient कि आप at least 2 weeks के लिए regular sunscreen use करिए और सन प्रोटेक्शन रखिए, डायरेक्ट धूप में नहीं जाना है जिससे आपका स्किन डैमेज नहीं हो. बिकॉज एनी प्रोसीजर व्हाट वी आर डूइंग ऑन अ सन डैमेज स्किन, दैट विल डू मोर ऑफ द हार्म देन डूइंग द गुड. सो कोई भी केमिकल पील अगर हम कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके पहले भी सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपने केमिकल पील किया है, ऊपर का स्किन एक्सफोलिएट हो रहा है, नीचे का नया स्किन आ रहा है, इट इज एक्सपोज डायरेक्टली टू द सन विदाउट द सन प्रोटेक्शन, देन दैट विल लीड टू द पिगमेंटेशन इटसेल्फ. तो आपको पहले बाद में प्रोसीजर के भी सन प्रोटेक्शन रखना जरूरी होता है. स्किन हेल्दी होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन गेट गुड आउट ऑफ दैट. और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपका सन एक्सपोजर हो ना हो, प्लीज स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट. इवन इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, यू आर हैविंग एक्ने राइट अवे, please use sunscreen. That's really important. And of course, choosing the right kind of sunscreen is very important. और उसके लिए आप सलाह ले सकते हैं अपने dermat से. So rather than going for asking a friend or family, go to the right person, which is a qualified dermat, because they'll understand your skin, they'll understand your problems, they'll understand your work culture, and उसके accordingly they can suggest a good sunscreen. और कई बार तो मैंने सुना है डॉक्टर कि if you get that perfect sunscreen for your skin, nothing like that. कई लोग तो सिर्फ sunscreen ही use करते हैं, and many a times they use sunscreen as an anti-aging product as well. Is that correct? Yes. There are many antioxidants also incorporated into the sunscreen, so they play the additional antioxidant effect on the skin. And obviously all this aging is not just because of the number कि आपका age बढ़ रहा है. Oxidative stress, pollution, and all these things also play an important role in skin aging. Right. We have Anamika with us. Her question is, could sunscreen use potentially trigger an allergic reaction or sensitivity for someone with acne-prone skin? Yes, some people may have allergy. It can be because of the preservative जो इसमें use हुआ है, और some component can be there जो कि किसी पेशेंट को एलर्जी करवा सकता है. नॉट इन ऑल, बट फ्यू पेशेंट्स कैन गेट. सो द पेशेंट हु आर सेंसिटिव और एलर्जिक, दे शुड ऑप्ट फॉर अ फिजिकल और मिनरल सनस्क्रीन व्हिच कंटेन्स जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड. सनस्क्रीन दो टाइप के होते हैं, केमिकल, फिजिकल. सो द केमिकल सनस्क्रीन जो रहते हैं उनमें एवोबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टिसाइलेट, दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट. एंड इन केस ऑफ द फिजिकल सनस्क्रीन वी हैव जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज अ इंग्रेडिएंट. So the sensitive patient, allergic patient, they should use the physical sunscreen. Also, we advise at the time of pregnancy and also in the children. The physical sunscreen are better. They should be used. They are safe to use. Right. And हम देख रहे हैं डॉक्टर आजकल sensitive skins भी बहुत ज्यादा होने लगी हैं, and people are also experimenting a lot with their skin care or makeup products.
इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मार्केट इज फ्लडेड विद प्रोडक्ट्स claiming that they can take good care of your skin, and we keep on experimenting. We there are people who have like 50 to 100 bottles of skincare products, and they'll keep on changing it every 2-3 months. अच्छा ये भी ट्रेंड में है, ये यूज करते हैं, 3 महीने बाद देखा हमने एक नया इन्फ्लुएंसर कुछ और नया एंडोर्स कर रहा है, will fall prey to that. So, is this one of the reasons why the sensitivity issue and other problems are increasing rapidly? See, this is not a wise decision to change your skincare product very fast. आपका स्किन आपको बताएगा कि आपको क्या चाहिए. If you have pigmentation, you should use the product which are for pigmentation, but it should use your skin type, suit your skin type. If you have very dry skin and you're applying vitamin C directly without applying moisturizer sunscreen, that will irritate your skin, and even you may have breakout. Also, in case hyaluronic acid is a very famous molecule, कि हर किसी को लगाना है, it will plump your skin, it will reduce the appearance of wrinkles and all. So hyaluronic acid, what it does is it absorbs the water. So if you have very dry skin, you are applying just hyaluronic acid, it will absorb the water from your skin. And if the environment is dry, so it will make your skin more dry. So you cannot apply everything what is told to you कि ये ठीक करता है, ये लगा लो, ये ठीक करता है, ये लगा लो. You can't do that. Your skin should accept that, your skin type should accept that, and the proper application is also important. Like tretinoin hai, I have seen in many reels and short feeds of the YouTube and all, कि tretinoin को एक pimple के ऊपर लगा लिया. So that is very wrong practice. That will irritate your acne and that can lead to a mark. So वो दिखाते तो हैं कि मैंने ये किया और मेरा skin ऐसे हो गया, but actual में कैसा हुआ हमें नहीं पता. So you can't get influenced with that, and proper guidance is important for any skincare product to use. That's correct. Actually, कई बार हमें लगता है कि एक तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, we keep on following these influences. Otherwise हमें लगता है कि देखो हमने अपना टाइम बचा लिया, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, या हमने अपने पैसे बचा लिए, हमने अपनी एनर्जी बचा ली. But ultimately what's happening, you're wasting your time, you're wasting your money, you're wasting your energy, and most importantly, you're wasting your skin, or you're risking your skin and your health by following all these practices. To go for the right thing, go to a doctor. हो सकता है जो लेंथ, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम थी, जिसको हमने अपनी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की थी, वो कहीं और ही पहुंच जाता है. और इनिशियली अगर हम एक डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो हो सकता है बहुत कम समय में हमारा चीजें प्रॉपरली ठीक हो जाए. इसलिए we are emphasizing on this कि आपको एक qualified dermat के पास जाना है in case you have acne, and definitely you should follow a proper skincare regimen, and sunscreen is equally important. चूंकि डॉक्टर हम बात कर रहे हैं कि sunscreen बहुत जरूरी है, और हमें no matter what, we have acne, we don't have acne, we are going out, we are not going out, we are working in front of computer or devices, or we are working in the kitchen, you need to use sunscreen regularly, religiously. Reapplication भी जरूरी है. और इन सब के बाद कई बार लोग पूछते हैं कि चूंकि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने स्किन पे सबसे ज्यादा बार अप्लाई करना है, और थ्रू आउट करना है, तो क्या सनस्क्रीन कहीं से कुछ टॉक्सिक तो नहीं है, ये हमें फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं देगा? ये भी एक बहुत आम सवाल होता है. What would you like to say on that? नहीं, अभी जो सनस्क्रीन है, दे आर क्वाइट सेफ. देयर आर स्टडीज जो पहले हुई थी, कुछ मॉलिक्यूल्स आए थे ऐसे जिसकी वजह से एलर्जीज कॉमन थी, एंड देयर वाज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, सो दे हैव बीन विथड्रॉन. सो अभी जो भी फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स आ रहे हैं, दे आर प्रॉपर्ली स्टडीड, उसके बाद में ही आ रहे हैं, सो यू कैन अप्लाई दैट सेफली. एंड इफ यू आर मोर कंसर्न, यू कैन ऑप्ट फॉर अ मिनरल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन. सो केमिकल वाला फैक्टर भी चले जाएगा, although they are also safe, but this is more safe, the physical Right. one. And doctor, before we sum up the whole session, any take-home message for our viewers? Take-home message is that about the acne, sunscreen, we have talked a lot about the sunscreen, the regular application, reapplication, and all things. But in case of the acne, as I said, it is not curable, but it is controllable. So we can just control it, but in the right way. And you need patience for that. For patient, you should take patience to give sufficient time to get it treated. कि आप अगर
ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए हैं, तो प्लीज ट्रस्ट एंड टेक द ट्रीटमेंट रेगुलरली। आप जो बोलोगे वो सुनेंगे, बट अगर आप बार बार जाके यही बोलोगे मेरा एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कब होगा, सो समटाइम्स वी डोंट हैव द आंसर, क्योंकि बार बार एक ही आंसर बताना कि इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, वो हमारे पेशेंट को कहीं ना कहीं कम करता है। सो पेशेंटली ट्रीटमेंट लीजिए, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल टू ट्रीट द एक्ने, कुछ प्रोसीजर्स भी हैं दैट कैन बी एडेड टू गिव यू रिलीफ फ्रॉम द एक्ने, एंड साइमल्टेनियसली एड्रेस करिए आप कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। इट इज जस्ट द ट्रीटमेंट पार्ट, और आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है या नहीं, सो उससे भी ध्यान दीजिए, उसको भी ठीक तरह से फॉलो करिए, अपने स्कैल्प के हाइजीन को फॉलो करिए, अपनी फेस के हाइजीन को फॉलो करिए, क्रीम्स किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी इन अ करेक्ट वे। आपको पिगमेंटेशन का रिस्क है तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, विगरस रबिंग नहीं होना चाहिए, बीच बीच में ट्रीटमेंट स्किप नहीं करना है आपको। आपका डाइट का भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा स्वीट फूड ना लें, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा स्वीट आप फूड लेंगे, शुगर लेंगे, जैगरी इन एनी फॉर्म, सो दैट विल इंक्रीज योर शुगर लेवल, और शुगर लेवल बढ़ने से एक्ने ब्रेकआउट्स और ज्यादा होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट शुड बी इन कंट्रोल, आपका पिलो कवर शुड बी चेंज रेगुलरली, सो ऑल दिस थिंग्स should also be kept in mind to treat your acne as a wholesome. Right. Thank you so very much, Dr. Radhika Patidar. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time. और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई. Thank you. Thank you so much. Bye. And viewers, thank you for your active participation, and stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Stay healthy. Keep glowing. Goodbye.